Good morning, students. So, in today's lecture, we'll be discussing a new topic, which is known as sparse matrix. I think that this topic is very new to you all. So, first of all, we will discuss the theoretical part of sparse matrix, and then we will see how to uh, represent the sparse matrix by using an array. And then after that, we'll do some kind of operations like transposition and addition of the sparse matrix. Fine. So till now, I hope in the previous lectures, till now you have already understand the concept of all the data structures, and I am receiving the assignments also. But I am requesting you all that kindly submit your assignment in time, because you all are, I think, in this pandemic situation, you all are in the house, and you should have access of the internet also. So you go through the internet, all the things are available on it. You analyze it, you try to understand the code, and try to write it on your own, and just post it on the Google Classroom. Fine. So let's begin with this session, today's session, which is the sparse matrix. So first of all, we will see that what do you mean by the sparse matrix. So this is a matrix, this is a 2D matrix which has 6 columns and 6 rows, as you can see that. But there is some special thing you are might having noticed in this matrix. आप लोग देख रहे होंगे इसमें zeros ज़्यादा हैं और non zeros values जो हैं वो कम हैं. Fine. So by seeing this we can have a little bit idea what do you mean by the sparse matrix. Basically वो matrix जिसके अंदर there are too many numbers of zeros and very few numbers of non-zero numbers are there is known as a sparse matrix. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे zeros हैं और जो non zeros values हैं अगर मैं उनको count करूँ तो that will be 1 2 that will be 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are only 8 non-zero numbers, and rest of it is a 6 by 6 matrix, so total number of elements are 36. So out of 36 there are only 8 elements, non-zero elements present in this matrix. Fine. So अगर मैं इसकी theoretical definition की बात करूं तो it is a computer programming. In computer programming, a matrix can be defined with a two-dimensional array. As we can see that it is a two-dimensional array, 2D array है. Any array with m column. So these are the columns, and these are the rows. Fine. So here m is the column and n is the row. This is the row. And there may be a situation in which a matrix contain more number of zeros values than the non-zero values. Such matrix is known as the sparse matrix. तो वो matrix, वो 2D matrix जिसमें के zeros जो elements हैं, zeros जो values हैं वो ज़्यादा हों और non-zero जो values हों वो कम हों, उसको हम बोलते हैं sparse matrix. So in other words, a sparse matrix is a matrix which contains a very few non-zero element. या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिसमें के सबसे कम non-zeros numbers होते हैं वो कहलाते हैं sparse matrix. Fine. Now the thing is that why there is a use of sparse matrix. Sparse matrix की जरूरत क्यों पड़ी हमें? So when a sparse matrix is represented with the two-dimensional array, we wasted lot of space to represent that matrix. ठीक है, अभी आप लोगों ने इसमें देखा कि यहाँ पे हमने 6 by 6 की मैट्रिक्स लिए, दैट मीन्स के 36 इसको जगह की जरूरत होगी, 36 एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर होंगे, और अगर मैं 36 एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, so that will become 6 4s are 24 and 2 and 4s are 12, 144. तो 144 बाइट्स की जरूरत पड़ेगी इसको. ठीक है, तो इतनी बाइट्स ये लेगा, तो इस वजह से इसमें क्या होगा, वेस्टेज ऑफ मेमोरी है.
तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर मैट्रिक्स ऑफ 100 by 100 containing only 10 non-zero elements. In this matrix, only 10 spaces are filled with the non-zero values and remaining spaces of the matrix are filled with the zero. तो अगर मैं 100 by 100 की मैट्रिक्स लेता हूं तो 100 by 100 into 2, अगर लेट सपोज के मैंने 2 बाइट का इंटीजर माना, वैसे लाइन एक्स के अंदर 4 बाइट का होता है, तो अगर मैं उसको 2 बाइट का मानता हूं तो ये हो जाता है 20 बाइट्स ऑफ स्पेस, ठीक है। तो 20,000 बाइट्स ऑफ स्पेस ये यहाँ पे स्टोर करेगा। एंड टू एक्सेस दीज 10 नॉन जीरो एलिमेंट्स वी हैव टू मेक स्कैनिंग फॉर 10,000 टाइम्स, ठीक है। और इन 10 नॉन जीरोज नंबर्स को स्कैन करने के लिए मुझे 10,000 टाइम्स इसको स्कैन करना पड़ेगा। तो जो मेरा जो टोटल वेस्टेज है, मतलब ये जो वेस्टेज हो रहा है इतना मेमोरी का, और जो स्कैनिंग का, कंप्यूटेशन का प्लस स्कैनिंग का, दोनों का जो वेस्टेज हो रहा है, वो जो उसको रोकने के लिए स्पार्स मैट्रिक्स का हम काम में लेंगे। सो इन अदर वर्ड्स, another definition is of the sparse matrix is that it is a matrix with a maximum of 1 by 3 non-zero elements. Roughly 30% of m into n is known as sparse matrix. ठीक है, तो अभी आपने ये प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा कि 36 में से सिर्फ कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 के अराउंड, 8 के अराउंड इसमें एलिमेंट्स नॉन जीरो वैल्यूज है। इसलिए हम लोगों को स्पार्स मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जस्ट टू reduce the computation and to reduce the memory usage also. We use matrices in computer memory to do some operations in an efficient way, but if the matrices are sparse in nature, it may help us to operations efficiently, but it will take larger space in the memory. That spaces have no purpose, so we will follow some other kind of structures to store sparse matrices. ठीक है, स्पार्स मैट्रिसेस नो डाउट के हम लोगों को बहुत ही एफिशिएंट वे के अंदर ऑपरेशंस कराती हैं, लेकिन उसमें साथ साथ में मेमोरी वेस्टेज भी होता है, तो इसकी वजह से हमें किसी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। फाइन। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द स्पार्स मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर? फर्स्ट वन इज द स्टोरेज एंड सेकंड वन इज द कंप्यूटिंग टाइम। जैसे मैंने आपको बताया, देयर विल बी अ लेसर नॉन जीरो एलिमेंट देन जीरोस, thus लेसर मेमोरी कैन बी यूज्ड टू स्टोर ओनली दोज एलिमेंट्स। ठीक है, तो ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे जीरोज ही होंगे, नॉन जीरोज जो एलिमेंट्स होंगे वो बहुत कम होंगे, इसलिए देयर विल बी अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ दोज एलिमेंट्स। कंप्यूटिंग टाइम कैन बी सेव्ड बाय लॉजिकली डिजाइनिंग अ डेटा स्ट्रक्चर ट्रेवर्सिंग ओनली नॉन जीरो एलिमेंट्स। अब कंप्यूटिंग किस तरीके से बढ़ जाएगी? कंप्यूटिंग ऐसे बढ़ जाएगी कि अब मेरे को सिर्फ ट्रेवर्स किसको करना है? सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही हम लोगों को करना है ट्रेवर्स। तो वो किस तरीके से ट्रेवर्स हो, किस तरह से कंप्यूटेशन करना, वो हम आगे इन द कमिंग स्लाइड्स वी विल डिस्कस इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now we will discuss about the representation technique of the sparse matrix data structure. So as far as your syllabus is concerned, there is only one kind of representation is there, which is known as the array representation. But in the assignment, as far as assignment is concerned, I will give you the linked list representation also. You have to show me only the representation, how the representation is done in the sparse matrix data structure by using linked list. Fine. So basically there are two commonly used methods for representing the sparse matrix data structure. First one is the array representation and second one is the linked list representation. So first of all we will discuss the array representation. Representing a sparse matrix by 2D array leads to the wastage of lot of memories, as zeros in the matrix are of no use in most of the cases. So instead of storing zeros with the non-zeros elements, we only store non-zero elements. ठीक है, अब अरे के अंदर हम क्या करेंगे कि जीरोस को हटा देंगे, नॉन जीरोस को ही खाली हम स्टोर करेंगे। अब वो किस तरीके से होगा? इट इज अ न्यू काइंड ऑफ टेक्निक फॉर स्टोरिंग द नॉन जीरो एलिमेंट्स विच इज नोन एज ट्रिपल्स। सो ट्रिपल्स होते हैं, ट्रिपल्स में हमारी तीन चीज आएंगी, एक तो रो, एक आएगा कॉलम और एक आएगा वैल्यू। नाउ व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर वी विल डिस्कस इन द फॉलोइंग स्लाइड। 2D array is used to represent a sparse matrix in which there are 3 rows. ठीक है, बेसिकली क्या होगा 2D array के अंदर, अब जो हम स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें बेसिकली 3 रोज काम में आएंगी और जो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली हैं। तो पहली होगी हमारी रो, सेकंड होगा हमारा कॉलम, रो और कॉलम तो होता है, तीसरी जो हमारी रो होगी वो होगी किसकी? वैल्यू की होगी। तो पहली रो कॉलम की, दूसरी रो पहली जो हमारी रो होगी वो रो की होगी, दूसरी रो कॉलम के नाम से होगी और तीसरी रो हमारी वैल्यू के नाम से होगी, जिसमें के वैल्यू ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट लोकेटेड एट द इंडेक्स रो एंड कॉलम होगा।
लेट्स डिस्कस, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। नाउ लेट्स कंसीडर अगेन द प्रीवियस ओल्ड एग्जांपल वी हैव टेकन। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ 6x6 की मैट्रिक्स ली है। सो एज वी कैन सी देयर आर 8 नॉन जीरो एलिमेंट, 1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 8 elements are the non-zero elements and 28 elements are नॉन जीरो वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि 36 का है तो 36 में से 8 चले जाएंगे तो 28 बचेंगे, तो 28 जो होंगे वो मेरे जीरो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो 6x6 की है। सो इफ द मैट्रिक्स ऑफ इफ द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज लार्जर, द वेस्टेज ऑफ द स्पेस विल बी इंक्रीज। तो अब हमने उसको किस तरीके से कम किया, हमने इस तरीके से कम किया। तो यहाँ पे देखा आपने, हमने तीन जो है हमारे कॉलम्स बना दिए हैं। पहला होगा हमारा रो, दूसरा होगा कॉलम और तीसरा होगा वैल्यू। अब ये किस तरीके से काम करेगा ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अपन पहली रो जो है मेरी उसको डिस्कस करेंगे। पहली रो में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 6 6 एंड 8। तो 6 6 एंड 8 का मतलब क्या होता है, देखिए 6 तो मेरे पास रोज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो मेरे पास रोज हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, और 6 ही मेरे पास कॉलम है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम लिखा है। और मेरे पास कितनी नॉन जीरो एलिमेंट्स है, मेरे पास वो है टोटल 8। तो बेसिकली जो मेरी फर्स्ट रो होगी इस मैट्रिक्स की, वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और कितनी टोटल नॉन जीरो वैल्यूज हैं। तो पहली चीज तो मेरी ये हो जाएगी। दूसरी चीज के अंदर देखिए आप कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ पे है, पहली रो में है, यस, और पहले कॉलम में है। तो पहली रो पहला कॉलम, उसके बाद दूसरा एलिमेंट कहाँ पे है मेरा, पहला रो दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है मेरा, पहली रो और छठा कॉलम, फर्स्ट रो एंड द सिक्स्थ कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड द सिक्स्थ कॉलम। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो तीन है ये मेरी फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, ये जो दो हैं ये मेरे सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये मेरा जो है ये तीसरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरा पांचवा और ये मेरा छठा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट रो के बारे में बताता हूँ। तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट कहाँ पे है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मेरा पहला एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है मेरा 2 है, तो बट ऑब्वियस है कि 2 है। उसके बाद मेरा पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जो है वो कौन सा है, 12 है, जो 12 यहाँ पे आ गया, और वो कहाँ पे लोकेटेड है उसकी लोकेशन मुझे बतानी पड़ेगी, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में। उसके बाद फर्स्ट रो और सिक्स कॉलम में मेरे पास -14 है। ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम में मेरे पास 7 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम में 3 है, और थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में मेरे पास -8 है, फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम में मेरे पास 91 है, सिक्स्थ रो और थर्ड कॉलम में मेरे पास 25 है। फोर्थ रो के पास आप देखेंगे, फोर्थ रो में मेरे पास कुछ भी नहीं है, दे ऑल आर द जीरोस वैल्यूज। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से मैंने स्पार्स मैट्रिक्स को एक डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सो हियर आर द फर्स्ट कॉलम इन होल्डिंग द फर्स्ट रो। सो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी जो वो है थ्योरी है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो नाउ यू आर हियर, यू कैन सी कि अब जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो ये रो बन गई है वो 27 की बन गई है, और अभी मेरे पास जो प्रीवियसली थी वो कितनी थी, 36 की थी। अब मैंने उसको रिड्यूस करके कितने का कर दिया है, 27 का कर दिया है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो स्पार्स मैट्रिक्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीरोस को एलिमेंट्स को हम हटा देंगे, वी डिस्कार्ड ऑल जीरोस एलिमेंट, और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उसके अंदर रख लेंगे, और एक नई तरह की मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें पहली जो चीज होगी, पहला कॉलम हमें रो के नाम से लेना है, दूसरा कॉलम हमें कॉलम के नाम से ही लेना है, और तीसरा कॉलम में हम वैल्यू स्टोर करेंगे। तो ये वैल्यू सबसे जो पहली रो होगी वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं और टोटल नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है। तो पहली रो को ही देख के हम बता सकते हैं कि हमारी स्पार्स मैट्रिक्स होगी वो किस तरह की होगी, और बाकी की जितनी भी रोज हैं वो ये बताएंगे कि कहाँ पर किस लोकेशन पे मेरी कौन सी वैल्यू स्टोर है। So by this we can get the total information about the sparse matrix. तो बेसिकली अगर मैं इसको बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे फिक्स 3 कॉलम्स रहने वाले हैं। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 3 फिक्स, ये हमेशा फिक्स ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ रोज वेरीज विद द नंबर ऑफ नॉन जीरोज एलिमेंट, खाली जीरोज और नॉन जीरोज एलिमेंट मेरे वेरी करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं तो कॉम्प्लेक्सिटी मेरी निकलेगी 3 into t equals to t फॉर द मैट्रिक्स m into x. Fine. So that is the thing. And as far as the assignment is concerned, this is the assignment. Show me the representation of the sparse matrix data structure using linked list. So अभी हम लोगों ने यहाँ पे data structure का representation देखा है, अब आपको मेरे को linked list का representation करके अपने assignment में बताना है कि किस तरीके से हम represent कर सकते हैं। So by this I end up the lecture. So in this lecture we have discussed what do you mean by sparse matrix and how we can represent by using the array representation.
Fine. So by this, I end up this lecture. Thank you.